Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde met the Maratha quota activist Manoj Jarange Patil in Navi Mumbai, accepting the demands proposed with a draft ordinance regarding reservation in education and jobs under the OBC category and quota. Well, with this development in mind, today we wish to take an interesting historical detour. Viewers, Maratha Empire, also referred to as the Maratha Confederacy, dominated a large part of the Indian subcontinent until the 17th century. The empire formally existed from 1674 with the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj and ended in 1818 with the defeat of Peshwa Baji Rao II at the hands of the British East India Company. Well, in this telecast, we will try and understand the Maratha pride and its empire, its legacy, its culture, and of course, the empire's greatest warriors with the aim to promote Maratha pride. Joining us to talk more about this is Mr. Bharat Ghotoskar, historian. He joins us on the program to talk about this important issue. Srimant Kokate, author and analyst, also with us on the show. Last but not the least, Mr. Pandurang Balkavade. He's a historian as well. Mr. Bharat Ghotoskar, I'll begin with you. I hope you can hear me. Thank you for Thank you for taking out the time and being here on NewsX. Well, you know, this particular news that has come about, you know, this change that the government of Maharashtra has made to accommodate these protesting individuals is not only about their demands. It's not only about the inclusion of the Marathas when it comes to jobs, education, and whatnot. It is also about honoring what the Maratha Empire stood for, what Marathi people stand for, and how perhaps that history and that culture ought not to be forgotten. Sure. So the basic problem with Indian history, the way it is taught, is the Maratha part is never taught. Absolutely. To most of India. Yeah. So the impression that people have is that the baton went from the Mughals to the British, which is not true. There's an interim period when there's a very strong Maratha Empire which rules from Tanjore in the south right up till what is Peshawar, which is borders of Afghanistan. So a mighty empire which didn't allow British for a long time to go beyond Bengal, Calcutta, and a small bit what is Mumbai or earlier Bombay. So you have to realize that British always said that if two communities remember that they were the rulers of India, it is the Muslims and the Marathas, right? So they have a memory of ruling the country, and hence they are the most difficult to control. Absolutely. श्रीमन कोकाटे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Again, listen. सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir, आ रहा है. सर, भारत ने एक अच्छी बात बोली कि भारत के इतिहास की जब बात की जाती है तो महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं उसमें उस तरीके से इंक्लूड नहीं किया जाता या उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना देने की आवश्यकता है और ज़रूरत है. क्या आप इस बात से, इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? Yes, मैं भी इस वाक्य को सहमत हूँ क्योंकि इस देश में मराठों का बहुत बड़ा योगदान है. जब हमारे देश में मुगलों का राज था, आदिल शाह का राज था, औरंगजेब का राज था, ईरान से लेकर तो बांग्लादेश तक और नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक, उस वक्त मराठों ने जो कार्य किया, जो योगदान दिया, वो देश के लिए, इस भारत के संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है. लेकिन मराठों का इतिहास अभी भी करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में, चाहे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, इसमें ज्यादातर आया नहीं है. दो ज्यादा आना चाहिए. सर, ये क्यों नहीं आया आपके हिसाब से? ये कहाँ कमी पेशी रह गई जिसकी वजह से ये जो इतिहास है ये आधा अधूरा ही है? राजनीति करने वाले जो लोग हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कौन सी पार्टी के हो, हर एक पार्टी की, उनको अवेयरनेस नहीं है, इतिहास के बारे में अवेयरनेस नहीं है. और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं है. अभी हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद प्रांतवाद बहुत बड़ा है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, साउथ, नॉर्थ,
ऐसा प्रांतवाद भी बहुत बड़ा है। प्रांतवाद के वजह से भी मराठा हिस्ट्री और मराठा जो इतिहास है, मराठा इतिहास सिर्फ मराठों का विचार नहीं करता, सिर्फ एक प्रांत का विचार नहीं करता, सिर्फ एक जाति का विचार नहीं करता। मराठों ने पानीपत तक जाकर, जो अब्दाली अफगानिस्तान से आया था, हमारे देश पर राज करने के लिए आया था, मराठों ने पानीपत, जहां पानीपत में सर्दी बहुत होती है, उस सर्दी में जाकर अब्दाली के खिलाफ लड़ाई की है। यानी कि इस देश को बचाने के लिए मराठा सैनिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस वक्त प्रांतवाद का विचार मराठों ने नहीं किया है। जो आज हमारे स्वतंत्र भारत में प्रांतवाद बहुत बढ़ रहा है, और प्रांतवाद के वजह से भी मराठा इतिहास पर अन्याय किया है। महाराष्ट्र के इतिहास पर अन्याय हुआ है। मिस्टर पांडुरंग बलकावड़े, इफ यू कैन हियर मी सर। राइट सर, आई होप यू कैन हियर मी। हाँ, ओके, हेलो। आपने अभी कोकाटी जी ने जो बताया है, सर बिल्कुल सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कोकाटे जी ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास के साथ अन्याय हुआ है, पर हमें इतिहास इतना तो याद है कि जब अंग्रेज़ों के साथ व्हेन वी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, you know, there were only a handful of rulers from either Punjab, Sindh or Maharashtra which had the bravado, to take on the British. Why do you think something so important ought to be omitted from Indian history, not Marathi history? यह मराठों के इतिहास के बारे में महाराष्ट्र जो कांग्रेस की सरकार, मैं कोई भी किसी पक्ष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पिछले 70 साल से मराठा हिस्ट्री के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया सही नहीं रहा। एनसीईआरटी के किताबों में जो चौथी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक का जो इतिहास पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अभ्यासक्रम में पढ़ाया जाता है, दुर्दैवता से वो पूरे 2200 पेज के इतिहास में मराठों का इतिहास सिर्फ 2 पेज में बताया गया है। उनको सिर्फ 2 पेज मिले हैं। यह मराठों के इतिहास के ऊपर नहीं तो हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपको सबको पता है 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र में जो स्वराज्य का निर्माण किया, हिंदवी स्वराज्य का, उसका हम अध्ययन करेंगे तो वो एक आदर्श राज्य था, लोक कल्याणकारी राजा। ये शिवाजी महाराज की पहचान है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ किसी जाति या प्रांत या धर्म के लिए, उनके लोगों के लिए यह राज्य नहीं खड़ा किया था, तो हर व्यक्ति किसी भी जात की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी धर्म की हो, उनको सुखी और समृद्ध करने का सोच करके उन्होंने वो निर्माण करने की कोशिश की थी। शिवाजी के उपरांत, छत्रपति शिवाजी महाराज के उपरांत भी मराठों का यही लक्ष्य रहा। जब मराठों ने अटक से लेके कटक तक बड़ा साम्राज्य निर्माण किया, देखिए जो मराठों ने किया, मराठों के राज्य में जिस तरह से मुस्लिम राज्यकर्ता जो मुसलमानेतर थे यानी हिंदू थे, उनके ऊपर जिजिया कर डाल देते थे, उनके ऊपर अन्याय करते थे। लेकिन मराठा राज्य में ऐसे किसी अलग धर्म के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होता था। मराठों ने एक आदर्श राज्य की नींव रखी है। और उन्होंने इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने साम्राज्य निर्माण किया, उसी तरह जब जब हिंदुस्तान के ऊपर परकियों के आक्रमण रहे, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हो गया, तो उनको मुकाबला करने के लिए बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में
मराठे उत्तर भारत की तरफ ओर गए थे। इतना ही नहीं, अब्दाली के खिलाफ उन्होंने 4 युद्ध में संघर्ष किया। पोर्तुगीज हो जहां गोवा में, और जो बंबई से, थाने से लेके गुजरात तक जो पोर्तुगीजों का राज था, उसमें यहाँ के हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय होते थे उनसे संघर्ष करके मराठों ने यहाँ रक्षा की है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया। तो मराठा अपना कर्तव्य मानते थे इस राष्ट्र का रक्षण करना, यहाँ के समाज की रक्षा करनी, और एक नया संस्कृति की नींव रखी थी, लिखना उन्होंने अपना ध्येय माना है। जो देश में इस्लाम के समय यहाँ मंदिरों का विध्वंस हुआ था, तो मराठों ने हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म से जीने का अधिकार दिया। जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया था पूरे हिंदुस्तान में, तो काशी में भी मराठों ने ही मंदिरों का निर्माण किया। जैसे अहिल्याबाई होलकर ने काशी में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया, मथुरा में महादजी सिंधिया ने कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया, द्वारका में भी वहाँ अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया। और उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए, तो लोगों के लिए डैम बनवाए, एक अच्छा राज वहाँ का, जैसे होलकर हो अहिल्याबाई तो पूरे हिंदुस्तान के लिए वंदनीय रही है, एक आदर्श राज्य करती रही है। और यही उद्देश्य मराठों का रहा, उन्होंने एक हिंदुस्तानी संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इनफैक्ट भरत, मिस्टर बलकावड़े इज एब्सोल्युटली राइट. There has been a lopsided approach towards Maratha history. Even growing up in India and seeing more roads named after Aurangzeb, Humayun and Babur than Shivaji or other heroes of Maharashtra is not only astounding, but it's a misrepresentation. It's unfair to the history of Maharashtra. Totally. See, if you look at it, when the British, I find it very interesting, when Calcutta was to be shifted out as the capital, and they selected 2 cities. The other city that they have selected as the capital of India was Pune, because they were wondering whether they were the heirs to the Maratha Empire or they were the heirs to the British Empire. And eventually, of course, they ended up doing it at Delhi, but Pune was a strong contender to be the capital of India, right? Now, you have to realize that thanks to Shivaji, Chhatrapati Shivaji, this state has been quite egalitarian. Unlike North India, many times when, in Delhi you see things like nepotism, this is not a state where you will see a lot of nepotism. Recently, casteism has increased quite a lot because of politicians, but traditionally it is quite an egalitarian society. If you look at Ramchandra Guha's analysis, he says the crucible of modern India is actually Maharashtra. So it is not only the Maratha Empire, the entire legacy after that, the contribution of Maharashtra in the freedom struggle has been enormous, right? And that of the city of Mumbai. So all that has to be looked at in totality. The current situation which is there when it comes to Marathas, you have to realize no other state has one caste dominating it totally as much as the Marathas. And when I say Marathas, many people mistake Marathi and Marathas. Marathas are the warrior community who are Marathi speaking, right? And they are the warriors, and also some of them were tillers who would even go to war at times, right? There was an upper crust within Marathas, but they form about 30 to 35% of the population of Maharashtra. So most of the other states, if you look at it, if you go to Karnataka, right, you have Vokkaligas and Lingayats who are equally dominant, right? Maharashtra is a unique state where one caste totally dominates it politically. And what they are essentially doing is they are feeling, the backward among them are feeling that they should have a reservation, and they believe that they have a natural legacy to ask for a reservation like this, and they are not getting what is due to them
after what they have contributed to the country. But Bharat, a point was also raised about the political intention to tweak our history, regardless of the political party that dominated our country. So, that is also something which is unfair. American history is American history. European history is European history. It doesn't miss out things, or does not in fact lay emphasis to a certain era or a certain person or a certain ruler just because a certain level of political motivation is involved. So I believe at that point of time after independence, because we looked at this country as a secular country, a set of historians decided to avoid any part which will talk about Hindu revival, right? And what happened, the renaissance which happened under Chhatrapati Shivaji and the inspiration that he created for coming generations is about Hindu revival, which might create a majoritarianism in this country, is what people believed, and hence that was blanked out, is what my understanding is, right? And that's the reason even the symbols that we use for modern India, looking at Ashoka as the person who is the symbol and having a Buddhist symbolism, is to show, not to show any Hindu revival, because there might be a majoritarian thought which would be imposed on the India. That was the fear of some of the people, the founding fathers at that point of time, and hence, and the Marxist historians after that. That is the reason, all this, the Maratha era is something that, because it essentially talks about resistance of the locals. Maharaj, that is Shivaji Maharaj at that point of time, talks about Hindavi Swarajya, which means it's the locals who are fighting against outsiders. They looked at everybody, the sultanates, as outsiders. They never mistreated the local Muslims. Right? Local Muslims were respected, the Quran was respected. What they were fighting against is outsiders who are coming here and dominating India. So, but that would create a majoritarian, already there were wounds of partition, and hence probably the founding fathers feared that if you allow a lot of Hindu revival history, then it would lead to a Hindu state. That could be the reason. श्रीमान कोकाटे जी, आपको क्या लगता है, ये जो एक सौतेलापन दिखाया गया है मराठी इतिहास को, इसको ठीक करने के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मराठों का योगदान बहुत रह गया है। अभी बलकौड़े सर ने भी बताया कि मराठों का इतिहास सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। मराठों ने कलकत्ता भी बचाया था, मराठों ने उत्तर भारत भी बचाया था, मराठों ने दिल्ली बचाई थी, मराठों ने पंजाब बचाया था, मराठों ने राजस्थान में भी जाकर, गुजरात में जाकर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जो मराठा थे, लेकिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने जो काम किया, सभी जनजातियों के लिए काम किया। उन्होंने उत्तर भारत में काम किया, दक्षिण भारत में काम किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी अमेरिका में भेजा था पढ़ाई के लिए। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, चेन्नई में उन्होंने नायर इंस्टीट्यूट को 5,000 रुपए दिए थे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। उन्होंने नागपुर में भी डोनेशन दिया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज कानपुर में भी उनका काम था। अभी जो यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, काशी में जो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी की जो जमीन है, वो जमीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने दी थी। और ये सभी प्रेरणा जी थी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, महाजी शिंदे, मल्हारराव होळकर और बाद में अहिल्याबाई होळकर ने पूरे भारत में काम किया। सोशल क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। अहिल्याबाई होळकर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, महाजी सिंधिया, उनकी जो प्रेरणा थी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड में जो छत्रसाल राजा था उन्होंने काम किया। आसाम में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर वहां के लोग औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़े। इसलिए मराठों का इतिहास सिर्फ मराठा हित के लिए नहीं था, इस देश के हित के लिए था। इस देश का कर, देश की जमीन, देश के लोग, सभी के लिए मराठों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अभी जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार
को बताना पड़ेगा कि मराठों का योगदान कैसा है, कितना बड़ा काम किया है इस देश के लिए, देश के कल्चर के लिए, देश के जमीन के लिए, वतन के लिए काम किया है। ये अभी के सरकार को बताना चाहिए। अगर उनको बताया, उन्होंने अगर तय किया, तो मराठा इतिहास इस देश के करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में, ICHR है, UGC है, यूनिवर्सिटीज है, इसमें भी मराठों का इतिहास आ सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का काम कितना बड़ा काम था। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में, जो फिडेल कैस्ट्रो कहता था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति पढ़कर अमेरिका के खिलाफ हम लड़े, और वहां के जो फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा का अध्यक्ष था, क्यूबा भी स्वतंत्र हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर। रशिया में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं लोग। जापान में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति, युद्ध नीति, उनका महिलाओं के बारे में जो धोरण था, अगर हमारी दुश्मन की औरत भी हो, दुश्मन की औरत का भी इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। किसान कहाँ का भी किसान हो, किसान का भी आदर करना चाहिए, किसान को मदद करनी चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के किसान के बारे में राजनीति थी। सेक्युलरिज्म आज हम सभी पढ़ते हैं। मध्यकाल में, मिडिवल पीरियड में सेक्युलरिज्म ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं थी। ये सेक्युलरिज्म कंसेप्ट मॉडर्न है, यूरोप से आई है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त, जो पोर्तुगीज ने भी लिखा है, पोर्तुगीज एक वाइसराय था, उन्होंने उनके राजा को एक लेटर भेजा है। इसमें लिखा है, यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का बहुत बड़ा राजा है, एक खुद की संस्कृति पर बहुत अभिमान रखता है, खुद की संस्कृति पर अभिमान रखता है, लेकिन जी अदर कल्चर आल्सो, ही रिस्पेक्टेड अदर कल्चर आल्सो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ऑल कल्चर, ही रिस्पेक्टेड ऑल कल्चर। इस विचारधारा की आज जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्म नीति, राजनीति, युद्ध नीति, किसान नीति, महिलाओं के बारे में उनकी नीति, ये सभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, यानी मराठी इतिहास का देन है पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए। अगर ये इतिहास नई पीढ़ी यहाँ जो भारत के नौजवान पढ़ेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, तो देश की उन्नति हो जाएगी। तो ये इतिहास हर स्कूल में, हर प्रांत में आना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये इतिहास हर टेक्स्ट बुक में, करिकुलम में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? राजनेताओं की होती है, हिस्टोरियन की होती है, जो थिंकर्स होते हैं, थिंकर्स, ये थिंकर्स के भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राजनेताओं को बताने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलकावड़े जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए? राजनेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, पर साथ ही साथ केंद्र सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस गलती का सबसे पहले एहसास दिलाने की, फिर उसको ठीक करने की। बिल्कुल सही आपने कहा है। अभी देखिए, जब अंग्रेजों ने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ अंत तक लड़ने वाले मराठे थे। 1818 तक उनका संघर्ष हुआ। अंत में ही ब्रिटिशों को पूरा हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा हो गया। जैसे ही कब्जा हुआ, स्वतंत्रता का नया संघर्ष हुआ, वो भी महाराष्ट्र में हुआ। 1822 में उमाजी नाइक ने संघर्ष किया। उसके बाद आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके जी ने संघर्ष किया। उसके बाद 1857 का जो संघर्ष हुआ, पूरा हिंदुस्तान व्यापक रहा, वो उसमें भी उनका नेतृत्व मराठों ने किया। यानी नाना साहब पेशवा हो, झांसी की रानी हो, उसके बाद तात्या टोपे हो। तो 1857 के बाद एक नया जो संघर्ष हुआ, वो भी देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूना में होने वाली थी, वो बंबई में हुई। उसमें भी नेतृत्व किसने किया? नामदार गोखले हो, न्यायमूर्ति रानडे हो, लोकमान्य तिलक हो,
लाल बाल पाल, लोकमान्य तिलक ने पूरे हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नया संघर्ष किया, उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक जी ने किया। इसी तरह हिंदुस्तान में परकीय अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ, उसका भी नेतृत्व हम देखेंगे तो वो नेतृत्व मराठा यानी महाराष्ट्रीय नेतृत्व से ही संघर्ष की शुरुआत हुई और अंत में भी गांधी के साथ जो रहे, यानी सावरकर जी भी हो और गांधी भी हो, गांधी जी के साथ जो गांधीवादी नेता थे वो भी मराठे थे ज्यादा उनमें, और सावरकर जी का जो भी संघर्ष था, जो सशस्त्र संघर्ष था, उन्होंने सुभाष चंद्र जी को प्रेरणा दी। उसके वो आजाद हिंद सेना निर्माण हो या भगत सिंह के साथ राजगुरु हो, तो ये जो संघर्ष है तो मराठों ने इस देश के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो ये संघर्ष का इतिहास यानी हिंदुस्तान का इतिहास है। मराठों के संघर्ष का इतिहास यानी हिंदुस्तान का इतिहास है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे को आशा है कि जो गलती पिछले 70 साल हुई उसको सुधारने की कोशिश अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही, ऐसे मुझे लग रहा है। कि जब भी हिंदुस्तान के इतिहास की बात चलती है तो मोदी जी हो या वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी कोई भी लीडर हो, वो हमेशा शिवाजी महाराज की प्रेरणा सब लोगों को देने की कोशिश करते। इससे मुझे विश्वास लगता है कि जो गलती पीछे हो गई उसको हम छोड़ देंगे और मराठों का इतिहास यानी हिंदुस्तान का इतिहास है। जो भी आदर्श रखेगा, हमारी नई पीढ़ी हमें निर्माण करनी है, हिंदुस्तान के लिए नया आदर्श निर्माण करना है। शिवाजी महाराज का राज्य जिस तरह से वो स्वराज्य था, उसी तरह वो सुराज्य भी था। और भी बात ऐसी जी, मध्य प्रदेश, मालवा में, बुंदेलखंड में, जैसे ग्वालियर में सिंधिया का राज रहा, इंदौर में होलकर थे, धार देवास में पवार थे, और वहां तमिलनाडु में तंजौर में मराठों का राज था। उनका इतिहास देखेंगे, आज भी ग्वालियर में सिंधिया फैमिली के लिए वहां के लोगों में जो रिस्पेक्ट है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 250 साल पहले, 200 साल पहले और पिछले 100 साल तक सिंधिया फैमिली ने वो मध्य प्रदेश के जनता के लिए जो कार्य किया है, इसी वजह से मध्य प्रदेश की जनता ग्वालियर के बारे में रिस्पेक्ट देती है, इंदौर में होलकर के लिए रिस्पेक्ट देती है, अहिल्याबाई के लिए, और तंजाउर में हम तमिलनाडु में जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जो रिस्पेक्ट है एंड द अप्रिसिएशन, इट इज एब्सोल्युटली एविडेंट, इट्स देयर फॉर पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज, but what's missing is the consolidation of this history in our textbooks towards our millennials to Generation Z. They all need to realize and understand what kind of a role has Maharashtra played in terms of making India what it is today. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.